Hello and welcome to Idle Talk. I'm your host Faryal, and today we will be discussing something really interesting. But before going on the topic, let me introduce our guest to you. Mariam Shah is an architect with an MA in Cultural Heritage Studies from Central European University Vienna. She has conducted research on community engagement and heritage education in relation to the endangered rock carvings in Upper Indus Valley. Currently, she is teaching at the National University of Science and Technology, Islamabad, and is also involved in digitization and documentation of the Brahmanical temple in Swat as a consultant with the Italian Archaeological Mission to Pakistan. She has also worked on cultural heritage initiatives in Europe and the USA. Welcome to the podcast, Mariam. How are you? I'm good, Faryal. Thank you. And thank you to Idle Talk for having me today. मरियम, आप पेशे के लिहाज से आर्किटेक्ट है, इसके अलावा आपको हेरिटेज के शोबे में तजुर्बा हासिल है और साथ साथ आपने आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे होने वाले काम को फील्ड पे भी ऑब्ज़र्व किया है। आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये तमाम शोबे आपस में क्या ताल्लुक़ रखते हैं और इंसानी माहौल और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे ये ओवरऑल क्या असर डालते हैं। जी फरियाल, तो ये जो फील्ड्स हैं ये सारी आपस में काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट देयर कनेक्शन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट दीज फील्ड्स आर इंडिविजुअली. सो हम जब आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर इज़ द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स. And in recent years, we also include research of the built environment. And the built environment is your buildings and whatever human made things you have in your surroundings. When we talk about heritage, it includes, so by definition, heritage means something that you have inherited from your family, from your ancestors, if it's a person. If it's a community, then it could be, your past, your people, or any kind of link you have with your past civilization or your ancestors in the past. So heritage can be tangible, heritage can be intangible. लैंग्वेजेस आती हैं हेरिटेज के अंदर, कल्चर आता है, ट्रेडिशन आता है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आ सकती हैं, मॉन्यूमेंट्स आ सकते हैं, जस्ट लैंडस्केप लोकेशंस भी आ सकती हैं. एंड रीसेंट स्टडीज़ और रीसेंट कन्वर्सेशन हेरिटेज का जो डिस्कोर्स होता है उसके अंदर वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ practices which might not be too big or too unique for everyone, but if they are unique and important for small communities, so they are also considered heritage. When we talk about archaeology, so archaeology is looking at all of these things. If we talk about in the present of how these things will be looked at in the future. So when thousands of years pass, and everything is, अभी के कोई trace नहीं रहता, सब कुछ बरी हो जाता है जमीन के अंदर. तो जब फ्यूचर वाले लोग पिछली पास्ट जनरेशन की कोई भी चीज़ एक्सकवेट करते हैं, कोई भी चीज़ डिस्कवर करते हैं, दैट्स आर्कियोलॉजी. So it includes a lot of things which are called material culture. So चीज़ों का देखा जाता है आर्कियोलॉजी के अंदर कि लोग कि क्या चीज़ें थी, क्या फिजिकल रिमेन्स थे जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कैसे रहते थे, इस एरिया का कल्चर कैसा था, ट्रेडिशन कैसा था. सो in easy terms, or to make it very simple, I would say the connection between all of these is that architecture can be our intervention in our environment in the present. Heritage can be how this intervention or this art is seen in the future. So there can be a few decades, and then archaeology is the same thing you see or you explore after thousands of years or hundreds of years. तो ये इन तीनों का आपस में majorly link है. And then if we talk about the technical terms, so if there is a historic building, if it's a heritage building, it is heritage and architecture at the same time. So whenever there's a heritage building, there's a chance of archaeology underneath it. So this comes side by side. If we are looking at architecture, we also bring in archaeological surveys. If we excavate a place, if we excavate remains of a small city, so we are talking about after the excavation, we are talking about architectural elements. So we are looking at evidence of a door or staircases. So this is how architecture comes in at that stage. And heritage, I would like to say कि I would consider कि heritage दोनों चीजें heritage के अंदर आती है. So heritage would be the broader term, and then archaeology, you have archaeological heritage and you have built heritage. So this is how all of these fields are interlinked.
एंड इनके इंटरलिंक होने में मेजर एक एस्पेक्ट ये है कि ऑल ऑफ इट इज मोस्टली अबाउट द बिल्ट एविडेंसेस दैट वी हैव. It might not include so much of intangible heritage that we say. Language इसमें इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, culture इतना ज़्यादा नहीं आएगा, but इन्हीं physical traces के base पे we understand, we try to understand what the past cultures were or what happened a few decades ago. This is how all of these are linked. And to talk about the second part of your question, how these fields or their relationship is impacting the human environment of the way we live. So architecture to directly हमारे साथ linked है because architecture is to do with the spaces that we make, and then the spaces that we occupy. So it's directly linked with what kind of spaces we are living in. उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या प्रैक्टिसेस हैं किसी एरिया में, क्या चीज़ वर्नैक्युलर है. तो जो भी चीज़ प्रैक्टिस होती है आर्किटेक्चर का इस तरह से लिंक है कि इट टॉक्स अबाउट द कल्चर ऑफ अ प्लेस, इट टॉक्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ अ प्लेस, it talks about the mental well-being, physical well-being of people who are occupying these spaces, and it has a direct impact on the way people live in a specific environment or in a specific area. Now, heritage has a lot to do with your identity. So, when we talk about heritage, heritage हम किसी ऐसी चीज़ को ही consider करते हैं जो कि लोगों के लिए important है, tradition important है. So, ये सारी चीज़ें मिल के humans की individual और collective identity बनाती हैं. तो हेरिटेज को हम इस तरह से डायरेक्टली लिंक समझते हैं. सो किसी भी इंसान से अगर पूछें कि हु आर यू या वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो दे टॉक अबाउट अ प्लेस, दे टॉक अबाउट वेयर दे कम फ्रॉम और देयर फैमिली. And then they have their own associations with their language, with their culture, with their tradition. So when we talk about heritage, it's about identity, individual identity, communal identity, or community identity as well, collective identity. And then archaeology is I would not consider it directly identity से linked इतना ज़्यादा, because archaeology अक्सर का archaeology का current situation से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता. Archaeological remains जब explore किए जाते हैं तो उस वक्त रहने वाले लोगों का direct उससे कोई खास ताल्लुक नहीं होता. But then it does talk a lot about, it does tell you a lot about the physical landscape, जो चेंजिंग्स आई हैं हमारे एनवायरनमेंट में या जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जहाँ कहीं कोई कम्युनिटी रह रही है, उसके करीब अगर कोई पुराना किसी टेम्पल के रिमेन्स मिलते हैं या फिर किसी बुद्धिस्ट स्टूपा के रिमेन्स मिलते हैं, तो इट टेल्स अ लॉट अबाउट द एरिया इन जनरल एंड हाउ थ्रू डेकेड्स और थ्रू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स people came here, left something as their identity or as a part of their culture, and now we get to explore it in the current situation. So again, to summarize it, it's somewhat to do with the present, and then थोड़ा सा पिछला past, like कुछ decades या hundreds of years की बात करें, and then we talk about thousands of years. So the way they are linked together is that they are mostly talking about the way humans have occupied the space, occupied Earth, and how we have evolved from time to time, from place to place, and how humans have been moving इस पूरे अपने इलाके में एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर. एक आर्किटेक्ट होने के हवाले से आपका वास्ता ज़्यादातर टेंजिबल हेरिटेज से पड़ता है. वो कौन सी तामीरात है जिनको हेरिटेज का दर्जा हासिल होता है, और किसी भी इमारत की तारीख़ी या तहज़ीबी हैसियत का तयन करने के लिए किन बुनियादी स्टैंडर्ड्स को जहन में रखा जाता है? सो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी. एक ये है कि यू हैव हेरिटेज जो एक कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल कंसिडर करते हैं किसी बिल्डिंग को या किसी भी मॉन्यूमेंट को एज हेरिटेज. दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास आता है टू डिक्लेयर समथिंग एज हेरिटेज और टू हैव इट ऑन अ लिस्ट. So these are two different kinds of approaches. So in the first one, where a building or a monument is important for a number of people or a community, can have any kind of importance for them which comes from a religious place. It can have some importance due to their past cultures or traditions. It can also be important because it shows किसी तरह का arts and crafts का एक अगर वो evidence है कि इनके पास में arts and crafts practice किया जाता था और वो किसी building के अंदर है या किसी monument में है, या कोई building या कोई monument किसी specific event से linked हो सकता है. So
ये जो ग्रोथ होती है या फिर ये जो कंसिडरेशन होती है एक बिल्डिंग को हेरिटेज समझने की, ये बहुत ऑर्गेनिक होती है. It over the years it develops as heritage. So we might not have an exact time or duration. Okay, this is when this building becomes heritage. So when we talk about people, जिस तरह से language is heritage for people, their culture and traditions are heritage for people, and it might not be directly linked to a specific time or a specific time period के इतने time बाद this is heritage. It's very organic. It depends on the associations of the people who interact with that building or with that monument, right? So इसके अंदर again यही कोई चीज़ हो सकती है, कोई literary importance हो सकती है, कोई भी arts and crafts की चीज़ हो सकती है, construction techniques हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो अब practice नहीं होती. It's the only evidence of people from the past. एक ये चीज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्टली लोगों के साथ लिंक्ड है। बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट दर्जा देना किसी चीज़ को, किसी बिल्डिंग को या किसी मॉन्यूमेंट को हेरिटेज का, देन कम योर अथॉरिटीज़ एंड ऑल्सो योर लीगल एस्पेक्ट. सो when a building is declared heritage or when a building is considered a heritage building, it does have a lot of considerations linked with it. Again, इसके अंदर भी same चीजें हो सकती हैं कि it's important for a religious group, or it's important because it is evidence of an important tradition, or it has a certain craftsmanship जो अभी practice नहीं होती या which has been going on in the area for generations. But this depends on where you are, what are your systems, what are your country's systems, what kind of listing processes you have. For example, in Europe and in the US, yeah, in some parts of the world, this is a very like step by step process. So a building can be heritage at the local level. उनकी अपनी considerations होती हैं. A lot of times कोई building जब फॉर्मली लिस्ट होती है हेरिटेज एज अ हेरिटेज बिल्डिंग और अ मॉन्यूमेंट एज अ कल्चरल हेरिटेज, उसके अंदर आता है टाइम का एलिमेंट के बिल्डिंग्स विच हैव बीन सर्वाइविंग फॉर द पास्ट 50 years और फॉर द पास्ट 60 years. ठीक है, टाइम का जो एज होती है उसकी वो कंसिडर की जाती है. देन अगेन कि ये किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से लिंक्ड है, इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, डज इट हैव अ स्पेसिफिक क्राफ्ट्समैनशिप, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कंसिडर की जाती हैं. सेम बिल्डिंग ये भी हो सकता है कि वो लोकल लेवल पे भी लिस्टेड है, उसको हेरिटेज का दर्जा दिया हुआ है, उसको रीजनल लेवल या फिर आप जो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट या फिर बियॉन्ड सिटी लेवल पे उसको कोई ना कोई प्रोटेक्शन मिलती है. उसके अंदर कोई और रेगुलेशंस हो सकती हैं, उसके अंदर कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टर कंसिडरेशंस हो सकते हैं कि बियॉन्ड दिस सिटी और बियॉन्ड दिस लोकेलिटी हाउ दिस बिल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट. सो इट कैन हैव considerations like this should be important for a lot of people, countrywide people. Then you also have national lists जिनके अंदर even ज़्यादा considerations होती हैं. So mostly जो चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि कोई literary importance, कोई cultural importance, traditional importance, arts and crafts, religious importance बहुत ज़्यादा होती है. बहुत सारी buildings ऐसी हैं जो अगेन जो रूलिंग अथॉरिटीज होती थी, किंग्स होते थे, मीर्स होते थे इन जीबीज केस, या फिर कोई भी जो है जैसे ऑटोमन एम्पायर की बहुत सारी बिल्डिंग्स को हेरिटेज कंसिडर किया जाता है. सो इस तरह की बहुत सारी कंसिडरेशंस आर एट एवरी स्टेज. सो one is declaring a building in a document or through a policy or on an authority level, and the other case is considering a building heritage because it is important for a number of people. So the difference also is कि अगर लोगों के अंदर organically एक building की importance है because they have some association with it, it might not have any legal aspects to it, so anything can happen to that building. But when a building is listed, when authorities are involved, when it is listed or it's declared heritage on a formal level, it may have more protection from the legal aspect. So मोर और लेस जो कंसिडरेशंस है वो सिमिलर होती हैं, बट इट डिपेंड्स के किस तरह से इस चीज़ को हेरिटेज समझा जाता है एक बिल्डिंग को. क्या वो सिर्फ लोगों के लिए है, क्या वो कंट्री वाइड है? जैसे पाकिस्तान के केस में हमारे पास एंटिक्विटीज़ एक्ट है जिसकी बेस पे बिल्डिंग्स या जगह हेरिटेज कंसिडर की जाती है. बट इन आवर केस वी डोंट कॉल देम हेरिटेज, वी कॉल देम एंटिक्विटीज़. So they can be movable antiquities or they can be immovable antiquities. अब पाकिस्तान के केस में ये भी है कि we don't have a lot of buildings on those lists. So it does not mean we cannot say in the field of heritage we cannot say because these buildings are not on the list they are not heritage.
because they are still important for a number of people. They are considered important or of value. They have associations. People have associations with those buildings. So these are the two main considerations we have to keep in mind when we talk about or when we question if a building is heritage or what makes a building heritage. मरियम, आपने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़र किया है, ख़ास तौर पे यूरोप में, जहाँ आपने कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट की अच्छी एग्जांपल्स देखी होंगी। बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि जदीद दौर में भी कदीम इमारत के बेहतर इस्तेमाल को शहरियों के लिए मुमकिन बनाया जा सकता है। इस बारे में आप कुछ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। जी, यूरोप में काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनमें अभी तक जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो अपने करंट यूज़ में भी इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ बहुत पुराने कैथीड्रल्स हैं, बहुत पुराने चर्चेज़ हैं जिन्होंने जिनके जो विद सम इवेंट्स उनकी हालत ख़राब भी हो गई थी, डिटेरियोरेट भी हो गई थी, बट उन्होंने उनको रिस्टोर किया है। दे आर यूज्ड इन देयर ओरिजिनल form and original program. One of the examples is Stephen's Dome in Vienna itself. जो वहाँ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैथीड्रल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द चर्च, क्रिश्चियनिटी चर्च एज वेल एज द सिटी ऑफ वियना। ये वर्ल्ड वॉर के दौरान डिस्ट्रॉय भी हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। इसकी छत जो है वो कोलैप्स कर गई थी आफ्टर द अटैक्स, एंड इट वाज रिस्टोर्ड एंड इट्स स्टिल यूज्ड एज एन एक्टिव चर्च। एट द सेम टाइम इन यूरोप देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिनमें वो अपनी हेरिटेज बिल्डिंग्स को या पुरानी बिल्डिंग्स को नया program दे देते हैं. So, for example, there was an active project going on when I was studying there, which was called Open Heritage. It was a research project to look at a lot of initiatives जो लोगों ने on community level start किए थे to convert old buildings, abandoned buildings या ऐसे buildings जो आधी उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था. So there were a lot of projects spread throughout Europe जिनमें बहुत सारी फैक्ट्रीज को कन्वर्ट किया गया था इनटू आर्ट स्पेसेस, या बहुत सारी जो है पुरानी फैक्ट्रीज को कन्वर्ट किया गया था इनटू मार्केट प्लेसेस, और ब्रूरीज को कन्वर्ट किया गया था इनटू वर्क स्पेसेस, ऑफिस स्पेसेस, एंड वो इस तरह से उन्होंने उनका जो फंक्शन है वो सस्टेनेबल ऐसे बनाया था कि उसकी मेंटेनेंस और उसकी जो प्रोग्राम है अंदर वो इस तरह चल रहा है कि जो अंदर से इकोनॉमी जनरेट होती है वही उसको सस्टेन भी करती है, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ लॉट बैक टू द कम्युनिटी दैट इट्स प्लेस्ड इन। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो यूरोप में बहुत ज़्यादा एक्टिवली लोग इसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसका इस्तेमाल करते हैं। एडेप्टिवली उसका प्रोसेस वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। एट द सेम टाइम इन यूरोप वी ऑल्सो सी the level of management is very different from the way we see in our country, for example. So, as I talked about a building being listed, उसी तरह उसी पे अगर मैं बात करूँ तो जब बिल्डिंग लिस्टेड होती है तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रूल्स, अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस, उसकी बेस पे उसकी मैनेजमेंट होती है, उसकी बेस पे उसके इर्द गिर्द उसके साथ बनने वाले जो कंस्ट्रक्शन है उन पे रेगुलेशंस आती हैं। सो एक बिल्डिंग अगर लोकल लेवल पे एक हेरिटेज कंसिडर की जाती है तो उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इसको टेयर डाउन नहीं कर सकते। अगर नेशनल लेवल पे वो इम्पोर्टेंट समझी जाती है तो इस तरह की इस हद तक रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि उसके सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक पेरीमीटर तक आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। देन वी ऑल्सो हैव द इंटरनेशनल लिस्ट जिनमें यूनेस्को की लिस्ट आती है, उसमें they have their own regulations. So in Europe there is a very systematic process of a building when it's listed, तो उसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता और उसको किस तरह का यूज आप दे सकते हैं. So they focus a lot on keeping the integrity of the original building. So even if its use is changed, they try their best to either keep its architectural value or its construction techniques or how the idea of it, the place serving the community. So whatever program they give it to the building, the new program, it still serves the community. And वो इस चीज़ बहुत फोकस करते हैं कि ऐसे ही programs हों जो साथ वाले लोगों को incorporate करें. So I don't see a lot of examples जिनमें the buildings are converted into five-star hotels, for example, या फिर buildings are converted into something that's only for a specific क्लास ऑफ पीपल. वो इस तरह की स्पेसेस बनाने की कोशिश करते हैं जिनमें हर तरह के लोग आ सकें और लोग अभी स्टिल उस बिल्डिंग के साथ इंटरेक्ट कर सकें एज इट वाज एक्टिंग इन द पास्ट. देयर वाज अ बार कॉम्प्लेक्स इन बुदापेस्ट जिसको
कहते थे ओल्ड Jewish district. So ये पुराने घर होते थे which had the Jewish community in it. And gradually with time people moved out, those houses were abandoned and they converted this whole area into a series of bars. So it is open for everyone. It does not have a restricted पीपल कमिंग इन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ कुछ लोग आ सकते हैं बाकी लोग नहीं आ सकते प्रोग्राम उसका ऐसा है जो लोगों को और अंदर लेके आता है सो इससे ये होता है कि जब आप इतना एक्सेसिबल बनाते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दैट हेरिटेज तो उसकी और वैल्यू करते हैं एंड बिकॉज हेरिटेज इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस सो इफ इन द पास्ट इट वॉज important for some other aspect, for example, it being a close-knit neighborhood of a religious group. Now it has its new heritage value. 'Cause now this place is important for community building. It's a good communal place for people. It has its own culture. So इस तरह से लोगों की उसके साथ association और बढ़ती जाती है. बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें फैक्ट्रीज को मार्केट प्लेसेस में कन्वर्ट किया गया है इनटू वर्क स्पेसेस में कन्वर्ट किया गया है जर्मनी में ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं वियना इटसेल्फ में देयर आर सम बिल्डिंग्स व्हिच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लो कॉस्ट हाउसिंग so this is how the people still keep interacting with the heritage building. They are not asked to stay away from it, or they're not just converted into a touristic destination. They keep the activity around it. They keep people coming in. A lot of buildings, for example, there was a building that was converted into an artist residency and also low cost hostel. So people were still coming in, artists were coming in. They had their galleries, they had their exhibitions. So इस तरह से वो एक तो उस हेरिटेज को मेंटेन करते हैं, रिस्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, बट उसका एक नया यूज भी लाते हैं सो दैट इट जस्ट डजंट जस्ट गेट स्टक इन टाइम कि अब इसको रिस्टोर कर दिया तो अब इसके साथ और कुछ नहीं हो सकता या फिर हम यही देख रहे हैं एक रिक्रिएशन देख रहे हैं कि पास में ऐसा था अब यहाँ से आगे हम इसको ऐसे ही देखेंगे वो उसका एक नया यूज लेके आते हैं अगर पास में कोई यूज था वो दोबारा पॉसिबल है जैसे अगेन चर्चेस की एग्जांपल है तो वो वही वाला यूज उनका कंटिन्यूस रखते हैं आगे तक in US where I was staying in San Antonio they had this rule that buildings which are older than 1960 are considered heritage. There is a process or historic building there is a process that every building has to go to if they want to be nominated to be a historic building तो उसके साथ कई restrictions आती हैं लेकिन once it is listed तो आपको फिर मेंटेनेंस की हेल्प मिलती है you have they have their own departments which केयरफुल लुक इनटू कि इन बिल्डिंग्स के साथ अब आगे क्या करना है इनको इनकी करंट सिचुएशन में कैसे मेंटेन रखना है ऑल्सो अगर कोई नई फैसिलिटी उसके अंदर आनी है जैसे विद टाइम यू हैव द क्लाइमेट इज चेंजिंग यू नीड एयर कंडीशनर्स सो उनको कैसे इनके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है उनकी मेंटेनेंस कैसे करनी है नया पेंट हो तो वो बिल्कुल ही नया ना लगे दैट इट्स नॉट फ्रॉम एन ओल्डर टाइम इट्स ऐसा लगना चाहिए कि दिस बिल्डिंग इज स्टिल ओल्ड they had this office of historic preservation which was actively working in these neighborhoods तो वहाँ पे मैनेजमेंट का there's a proper very proper system it's not it doesn't stop at listing a building as heritage it keeps going on it keeps thinking about आगे क्या होगा how this building will be used in the present and also in the future हज़ारों साल गुजरने के बाद हेरिटेज से मुतल्लिक सिंबलिज्म उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए एक सा नहीं रहता किसी भी जगह रहने वालों को कैसे इस बात पे आमादा किया जा सकता है कि वो पहले वहाँ रहने वाली कौमों की निशानियों की कदर करे जबकि वो इनके साथ हाल में कोई ताल्लुक़ महसूस नहीं करते इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करूँगी कि जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है नाउ एंड दिस इज़ एन इमर्जिंग कॉन्सेप्ट और इमर्जिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिटेज दैट हेरिटेज इज़ नॉट समथिंग फिक्स्ड heritage is an we consider heritage as an ongoing process so what this means is कि कोई चीज़ अगर किसी एक स्पेसिफिक वजह से हेरिटेज कंसिडर की गई कोई बिल्डिंग कोई मॉन्यूमेंट कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन कोई इंस्क्रिप्शन कोई डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज वो वहाँ पे रुकता नहीं है सो उसकी हेरिटेज वैल्यू सिर्फ वो नहीं होती जो एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी या एट द टाइम व्हेन एन एक्सपर्ट कम्स इन एंड सेज दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन so we have a lot of examples, especially in Pakistan and in the South Asian context, in which we have people who are currently living in an area and who are surrounded by an abundance of heritage that's not directly linked with them. So इस तरह के cases में as a question is कि we have to understand कि जो heritage है
उसकी एक तो वही इम्पोर्टेंस है जो हम देखते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है, फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शंस हैं या कार्विंग्स हैं फ्रॉम फ्रॉम पीपल फ्रॉम अ पीरियड जो हज़ारों साल पहले यहाँ से गुजरे हैं, उनकी एक इम्पोर्टेंस ज़रूर है। लेकिन हमें ये चीज़ भी कंसिडर करने की ज़रूरत है कि जब करंट लोग इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं तो अब वो उस हेरिटेज के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज़ वेयर द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कम्स इन कि अगर कोई ऐसी लेट्स से बिल्डिंग है, कोई टेम्पल है। पाकिस्तान में अभी बहुत सारे एरियाज में ऐसे हमारे पास पिंडी में जैसे टेम्पल्स हैं जिसके अराउंड सराउंडिंग कोई हिंदू कम्युनिटी as सच नहीं रहती, बट दे आर जस्ट देयर. And then we also have a lot of Buddhist remains or evidences of presence of Buddhism in our area in Pakistan. जो ऐसा अभी हमें हाँ यहाँ पे हमारे पास कोई बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन है नहीं, तो हमें इस चीज़ का को ख्याल रखना होता है कि करंटली या विद पैसेज ऑफ टाइम जो करंट लोग हैं उनके साथ जो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं. Do they consider them as again something that can be important for tourism boost in their area, or they have developed their own associations with those examples of heritage. So jab hum as heritage experts or people who know what this art is, or this rock art or these inscriptions are, when we go into the field and we do research, or when we communicate with the community, we need to understand कि जो हमने community को अगर उसकी importance समझानी है तो हमने community की बातों को भी importance देनी है. सो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है ज़हन में कि हम उनको ये समझाएं या उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि व्हाट दे एसोसिएट विद दिस heritage or this art and craft or this building, let's say a temple, if there is a temple, how do they associate with it? So they might have a story, they might have their understandings, they might have a misconception or a myth जो बहुत सालों से उनके पास चलती आ रही है. So we give it, if not equal importance, but some importance. That this is how this heritage or this evidence has been interpreted by the local people. If we go in as heritage experts and we tell them that this is important, you need to give it importance, you need to consider it heritage, तो उनको ये वाली चीज़ ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हम उनको ये बता रहे हो कि आपको नहीं पता ये क्या है. You don't know where you are, and we are trying to tell you or impose on you that this is important. So, in recent discourse of heritage, there's been a lot of debate on what exactly is heritage. क्या हेरिटेज जो हम 50 साल पहले या फिर 100 साल पहले कोई एक्सपर्ट्स ने आके चीज़ को डिक्लेयर किया था हेरिटेज, क्या लोग अभी भी उसे एसोसिएशन रखते हैं? बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं इन द वर्ल्ड जिनकी जो है लोकल लोगों के साथ इन द कम्युनिटी दे हैव बैड लाइक नॉट पॉजिटिव एसोसिएशंस विद देम. So they want to be disconnected with that specific type of heritage or building. For example, in the US, there are a lot of monuments of people who were involved in slavery, या फिर जो लोगों का जो वहाँ पे लोगों के साथ जुल्म होते थे उसमें वो involved थे, but because they were considered important in the American history, they had those monuments. But now the people are negating that and they don't want to be associated with them or don't want to give it importance. So whenever we are talking about heritage and कोई ऐसा हेरिटेज जो करंट लोगों के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं रखता, तो हमने ये देखना होता है कि अभी क्या एसोसिएशन है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और फिर उसको कैसे डील किया जाए. व्हाट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ एसोसिएशन वी कैन डेवलप between these two people, with these two groups. So again, the example of Chilas, the local people, when I went for my research in Chilas, they told us that yes, people come in for their research, but we have not interacted with them ever. यहाँ बहुत सारे आते रहे हैं foreigners, यहाँ बहुत सारे researchers आते रहे हैं, लेकिन हम लोगों के मतलब they were saying कि yours is a research जिसमें हम पहली दफ़ा बात कर रहे हैं about this heritage. हम लोग अपना आइडिया बता रहे हैं, परसेप्शन बता रहे हैं. और बहुत दफ़ा जब एक्सपर्ट्स आके ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि नॉट व्हाट यू आर सेइंग बट व्हाट वी आर सेइंग इज करेक्ट, तो लोग जो एसोसिएशंस उनकी होती हैं, इवन इफ दे हैव सम वैल्यू, अगर वो उनकी जो प्रैक्टिस है लेट्स से ऑफ ट्रेजर हंटिंग, अगर वो फॉर सम टाइम उनके एंसेस्टर्स में इंपॉर्टेंट थी, तो अब वो उसको रद्द करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनके जहन में ये बैठ जाता है कि एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं दिस इज नॉट करेक्ट. So a lot of people did talk about this practice as something as a not so serious, not so important, even though in the past it was important for the people who were involved in it before them. So we have to understand that again, heritage is an ongoing process. So we have to see that if directly not,
associated with them. So we have a lot of Buddhist inscriptions in Chilas and in the surrounding areas. We don't have a Buddhist population. We have a Muslim, majorly Muslim population in there. So we won't go in there and be insensitive and start talking about it as a, you know, a religious रिमेन या फिर इस आप इसको इम्पोर्टेंस दें क्योंकि बुद्धिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है तो इसके आपके फिर जो है नेगेटिव रिस्पॉन्सेज या नेगेटिव एसोसिएशंस आने लगती है लोगों की कि आर दे ट्राइंग टू इम्पोज दिस ऑन अस आर दीज पीपल हु आर रिसर्चर्स दे आर टेलिंग अस दैट something that's not really important in our religion or in our culture we have to give it due importance so उससे आपकी और जो है उससे डिस्टेंस बढ़ जाता है सो वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड के करंट लोगों की एसोसिएशन क्या है और हम लोग उस एसोसिएशन को बेहतर कैसे बना सकते हैं जैसे जो भी स्टडीज हुई हैं अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इवन आई डिडंट नो कि जो यही रॉक आर्ट है इन जिलास इस पे इंटरनेशनली कितनी ज़्यादा स्टडी हुई भी नॉट इवन ऑन पाकिस्तान लेवल इन 1970s एंड 80s व्हेन केकेच स्टार्ट में बन रहा था तब ये डिस्कवर हुए थे and almost all of them have been documented and there are thousands of these carvings and inscriptions but on our level we don't know on the national level or on the local level so there is a very stark distance between what the experts are doing or what the scholars have been doing and what the local people think of them. And in recent heritage discourse, more importance is given to the local associations, the present associations, even if they are small, even if it's a small group of people who have these associations, even if it's बहुत कम members of the community who still give it due importance. मरियम, आज हम एक तेज़ रफ्तार और टेक्नोलॉजी के हिसाब से तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी से हेरिटेज को प्रिजर्व करने में क्या-क्या आसानियाँ पैदा हो सकती हैं? जी, तो आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है इन हेरिटेज प्रिजर्वेशन। सो इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द बिल्डिंग वाज़ ओरिजिनली इनिशियली। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कि इस बिल्डिंग के साथ क्या-क्या हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या-क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, डिटेरियोरेशन हुई है, क्या वो एक्सेसिव जो है बारिश की वजह से या कोई फ्लड हुआ था कि बिल्डिंग के ऊपर कोई चेंज आया है, इज़ इट नेचुरल वेजिटेशन। सो इस तरह की सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। स्कैन्स होते हैं डिजिटल स्कैन्स होते हैं जो बताते हैं नीड्स जो डैमेज असेसमेंट है उसमें टेक्नोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग अ लॉट इन हेरिटेज बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल्सो आर्कियोलॉजी में तो टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ पार्ट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आजकल एक और नई चीज़ जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन हेरिटेज इज़ 3D लेजर स्कैनिंग एंड 3D डॉक्यूमेंटेशन what this does is it takes a 3D image of the whole heritage building, heritage monument or an artifact और वो उसको digitally 3D create कर लेता है इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है फ़ायदा इस तरह से है कि it has like a copy of a specific heritage building or a heritage site and we keep a copy of it in case something happens to the original heritage building or heritage site or a monument. So बहुत दफ़ा जब किसी चीज़ को हेरिटेज डिक्लेयर किया जाता है अब द फर्स्ट स्टेप कम्स इन एंड इट्स द फर्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंटेशन बिफोर यू रिस्टोर इट बिफोर you reconstruct it or you before you stabilize it so the first thing comes in as documentation ये पहले भी documentation होती थी बट वो hand drawn होती थी उसमें 2D drawings होती थी अब बहुत ज़्यादा 3D लेजर स्कैनिंग और 3D डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हमारे पास एक पूरा का पूरा 3D बना आता है तो आपके पास एक जो है एक कॉपी आ जाती है 3D में और आप उसको एज ऑलमोस्ट एज रियल देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग अच्छा 3D में कैसी लगती है और इसकी क्या सिचुएशन है राइट नाउ सो एक तरह से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इन केस समथिंग हैपन्स बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो देयर आर थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल इवन इफ a building is being managed very well you can have natural disasters you can have any kind of unwanted activity around a building जिससे वो बिल्डिंग ख़राब हो सकती है तो आपके पास एक कॉपी है जो आप रख सकते हैं either for recreation restoration or just as a copy for to keep as a record for future generations so that people can understand कि यहाँ किस तरह की बिल्डिंग्स होती थी किस तरह के मॉन्यूमेंट्स होते थे दूसरा नुकसान इसका ये भी है कि नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड सो मच एंड हर चीज़ 3D में इतनी आ गई है एज मेंशन इन द क्वेश्चन कि डिजिटली चीज़ें बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हैं डिजिटल जो डिजिटल वर्ल्ड है उसका बहुत ज़्यादा रोल है इन आवर लाइव्स सो अब जो बिल्डिंग्स हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं हेरिटेज के वो पूरे के पूरे हमारे पास
कंप्यूटर के अंदर आ गए हैं. सो a lot of people just experience these heritage buildings or heritage elements through their computer screens, and the need to go to a site or to go to a building to experience it, to understand it or to study it, ये थोड़ा सा इससे कम हो जाता है. दूसरी से ये भी चीज़ होती है कि ना इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो हेरिटेज को हम थ्रेट्स होते हैं बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी के भी. सो दिस कैन ऑल्सो गिव राइज टू अनवांटेड ह्यूमन एक्टिविटी. सो यू मे हैव सम heritage monuments which are threatened by a group of people, which are not liked by a certain number of people, and they can know the abundance of all of these heritage elements जो यहाँ मौजूद हैं, because they can get this information from their computer. So इस तरह से इसका एक नुकसान भी है. बट अगेन फ़ायदों में एक ये चीज़ भी है कि बहुत जगहों पे अब ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कि व्हेन यू आर ऑन साइट यू कैन हैव स्क्रीन्स जिसके ऊपर वो रिक्रिएशन आप देख सकते हैं. सो व्हेन यू आर इन अ स्पेसिफिक बिल्डिंग, अगर उसका कोई ब्रोकन पार्ट है, कोई ऐसा पार्ट है जो बीच में नहीं है इस वक्त मौजूद, आपकी उस जगह पे एक स्क्रीन लग जाती है एंड यू कैन सी अ रिक्रिएशन ऑफ exactly the same thing in that screen. So you can again get to experience that building almost as it was originally. So इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन में और रिक्रिएशन के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. जिस तरह यही चिलास के जो रॉक आर्ट है, दिस हैज़ बीन डिजिटाइज्ड. हमारे पास 3D मॉडल्स हैं ऑफ ऑल इंडिविजुअल रॉक्स. वी हैव पैनोरामिक पिक्चर्स जो हम देख सकते हैं. सो हम इंडिविजुअल रॉक्स को भी देख सकते हैं अलग अलग 3D में, और हम ऑलमोस्ट उस अपने कंप्यूटर के थ्रू उस स्पेस में जाके भी देख सकते हैं कि अच्छा सारे इन द लैंडस्केप कैसे प्लेस्ड हैं. इसी तरह द करंट प्रोजेक्ट दैट आई एम इन्वॉल्वड इन, जिसमें हम 3D डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ऑफ द टेम्पल, उसमें एक तो हम करंट सिचुएशन की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि इस वक्त व्हाट आर द रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, बट वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन रिकंस्ट्रक्शन, 3D reconstruction of the original temple जो यहाँ पे था, because right now we only have the base as the archaeological remain. So हमारे पास digitally original version आ जाएगा कि जब यहाँ पे temple होता था वो कैसा दिखता था, और फिर हमारे पास documentation के through current जो आपकी look है of the whole temple mound वो पूरा आ जाएगा. So in case something happens in the area to the whole mound, we do have a copy of the remains of the temple in there. अच्छा मरियम, आप हमें ये बताएं कि ड्रोन या किसी भी इक्विपमेंट से 3D मॉडलिंग कितनी एक्यूरेट और कितनी ऑथेंटिक हो सकती है. अच्छा, एक तो होती है ड्रोन इमेजिंग, ठीक है, एंड इट मेक्स अ फोटोग्रामेट्रिक मॉडल of the thing. So it is documenting. We're not recreating. We're not building something in 3D through a software. We are connecting pictures. So this comes with the drone. इसके अंदर हो सकता है कि कुछ एक्यूरेसी ना हो, क्योंकि फर्स्ट ये सॉलिड कैप्चर नहीं करता. इट्स अगेन अ कलेक्शन ऑफ 2D. सो इंटरनली एग्जाम्पल, मतलब वेरी आसान अल्फाज में एग्जाम्पल होगी कि इंटरनली वो चीज़ हॉलो होगी. सो इफ आई एम लुकिंग एट आई एम डॉक्यूमेंटिंग अ बुक लेट्स से, तो उसकी चारों साइड्स तो मुझे 3D में नजर आ जाएंगी, बट इंटरनली मटेरियल वाइज देयर वोंट बी एनीथिंग इनसाइड. सो इट डजंट हैव दैट डेप्थ. एक तो आपके पास ड्रोन से ये फोटोग्रामेट्रिक मॉडल्स बनते हैं. दूसरा वी हैव लेजर स्कैन्स, एंड लेजर स्कैन्स आर वेरी एक्यूरेट. सो इसके अंदर भी अब डिफरेंस ये है कि लेजर जो होता है वो पॉइंट क्लाउड्स के थ्रू वो बहुत सारे पॉइंट्स उठा के उस चीज़ को एक्यूरेटली बनाने की कोशिश करता है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर लेजर स्कैन, and the more accurate you want the last final model to be, the more heavier it's going to be, the more advanced laser scan you need. ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लेज़र स्कैनर चाहिए वो रिकॉर्ड करने के लिए. एंड अगर वो आपके पास नहीं है तो ज़ाहिर है उतनी एक्यूरेट आपकी चीज़ नहीं आती. एंड देन ये सारी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद रिक्रिएट करने के लिए उस पर काम ह्यूमंस नहीं करना होता है, तो ज़ाहिर है देयर इज़ a margin of error, but laser scans till now are very very accurate. They are very so, and it also depends on the scale of the project. So let's say in our this project where we are working on the archaeological mound, it's a huge area. इसके अंदर हमारे पास एक टेम्पल का एरिया है, उसके पास एक बुद्धिस्ट स्तूपा का रिमेन है, उसकी एक प्रॉपर एंट्रेंस है, उसके ऊपर देयर इज अनदर इंटरवेंशन एट इन द गजनवी पीरियड के यहाँ पे उनके कोई जो है मिलिट्री कोई बेस होती थी. दे हैड अ वाटर टैंक. सो इट्स अ बिग एरिया. अब इस स्केल पे लेजर स्कैन के थ्रू जब हम स्कैन कर रहे हैं
तो अबाउट 6 इंच या फिर लेट्स से 2-3 इंचेस की इनएक्यूरेसी डजंट मैटर दैट मच। बट देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल थिंग, अगर कोई छोटा-सा मॉन्यूमेंट है, छोटा-सा आर्टिफैक्ट है, तो उसमें इतनी एक्यूरेसी ज़ाहिर है अगर नहीं होगी तो फिर वो पूरा का पूरी चीज़ उतनी एक्यूरेटली नहीं बनेगी। So it depends on the scale of the project. It depends on the type of scanner that you have and how accurate you want the thing to be. And again, what is obviously fully lacking in all of these recreations is that you don't have the textures. You don't have the textures of stone. You don't have the textures of the arts उसके अंदर है तो आपको जितना भी वो क्योंकि collection of pictures ही होगा तो आपको उतना ज़्यादा जो है रियल लगेगा भी नहीं। एंड देन ये तो डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी। फिर आप रिक्रिएट करते हैं खुद से जो आपने पूरा का पूरा बनाना होता है, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑलटुगेदर। सो फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन दैट वी गॉट द मेजरमेंट्स ऑफ लेट्स से इफ इट्स अ स्मॉल मॉन्यूमेंट, जैसे अगर कोई माउंट है तो उसके ऊपर कोई स्तूपा के रिमेन्स हैं, तो उसमें हम स्मॉल स्केल की अगर बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट ईच स्टोन इन इट्स डायमेंशंस, ठीक है? सो वो हम पहले उस डॉक्यूमेंटेशन से उठाएँगे, उसके बाद अगर हमने उसके ऊपर रिक्रिएट करना है, ये दिखाना है कि ओरिजिनली स्तूपा कैसा लगता था, तो थ्रू रिसर्च, थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन दैट वी हैव, हमने वो फिर 3D मॉडल खुद भी बनाना है। तो उसके अंदर नाउ देयर इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट के जो मुझे मशीन ने ला के दिया है, उसके बाद देयर इज़ दिस एस्पेक्ट ऑफ व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिसर्च दैट वाज़ डन इन द पास्ट, एंड देन इन दोनों को मैच करके आई विल कम अप एंड हैव सम मेजरमेंट्स के जो मेरा फाइनल 3D मॉडल बनना चाहिए, जो दिखाता है कि ये स्तूपा ओरिजिनली कैसा था, वो फिर मैं एक अपनी अंडरस्टैंडिंग से बना रही हूँ। तो फिर जो आपके फाइनल 3D जो रिक्रिएशंस होती हैं, उनमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व्ड, तो वो बंदा खुद बना रहा होता है 3D मॉडल। सो उसके अंदर फिर वो इसलिए इनएक्यूरेसी आ सकती है कि कुछ पार्ट डॉक्यूमेंटेड था, कुछ पार्ट थ्रू रिसर्च था, एंड कुछ पार्ट फिर अगेन आर्कियोलॉजी में अजम्पशन होती है, इंटरप्रिटेशन जिसको हम कहते हैं, हेरिटेज इंटरप्रिटेशन के फिजिकल एविडेंस से और रिसर्च से मैच करके व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल recreation of this material. So it again depends on the type of laser scanner you have, the type of documentation you have done, and the existing information you have about a certain um, artifact or a thing. कोई भी हिस्टोरिकल साइट जो डिजिटली प्रिजर्व्ड हैं उनको हम वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं. So doesn't it provide a wider access and promote that site? So it does promote. I personally don't fully agree कि वो पूरा experience होता है. Promotions, yes, for sure होती है. So more people get to know about it. So there's a chance कि more people would go there. So when I was doing my research in Chilas again, I had seen these 3D panoramas done already by a research team, which was a university in Canada. There's a professor and also a team from LUMS. So उन्होंने रिक्रिएशन की हुई थी, हर पत्थर का उन्होंने 3D तकरीबन बनाया हुआ था. They were working on the project. They were in the post processing stage when I was doing my research. So I saw those panoramas as well. I was almost aware of all the sites जिन पे उन्होंने काम किया था. And then I went to the site to see. And it's a totally different experience the way you see it in reality. जो VR या फिर आपका जो panorama है, इसके थ्रू बिल्कुल कैप्चर नहीं हो सकता. Because हेरिटेज के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगेन हम अगर इसी चिलास के रॉक आर्ट की बात करें तो वो एक जो आर्ट बनाया था किसी इंसान ने वहाँ पे, व्हिच इज़ लेट्स से अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मारखोर और हंटिंग सीन, वो सिर्फ इंडिपेंडेंटली इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट. इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट. So what gives it importance is the Indus River. What gives it importance is that it's right next to the river on a huge rock, जिसकी एक फॉर्मेशन हुई है रिवर ही के फ्लो की वजह से, एंड देन उसके इर्द गिर्द और कितने सारे रॉक आर्ट मौजूद है और कितने सारे सिमिलर बने हुए हैं. तो उसी वक्त आई हैव द लैंडस्केप दैट टेल्स मी कि अच्छा यहाँ क्या हुआ था. आई हैव द अदर रॉक आर्ट विद इट जो डिफरेंट टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है. तो उस पॉइंट पे इन रियलिटी इन 3D इन एक्चुअल वर्ल्ड, the experience I have of that specific art or the heritage is very very different from what you can get from VR or what you can get from a panorama. And definitely what I do feel, as I mentioned before, what lacks is the sense of touch or the texture. That's also very very important when we are talking about um,
इस तरह का हेरिटेज, एंड स्पेशली टेंजिबल हेरिटेज में ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनटेंजिबल में फिर ज़ाहिर दीज थिंग्स आर वेरी दे एड मोर, इनसे फ़ायदा ज़्यादा है डिजिटाइजेशन से कि आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, आर्काइव्स बन गए हैं, ज़्यादा फ़ायदा है तब। बट फिजिकल में ऑफ कोर्स फ़ायदा तो बहुत है। जैसे मौसूल में देयर वाज अ म्यूजियम फुली डिस्ट्रॉयड बाय द इस्लामिक ग्रुप, जो टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पे था, वो फुली फुली उन्होंने तबाह कर दिया था। और जो रिमेन्ड उनके यानी आधे आधे पौने उनके जो स्कल्पचर्स थे टूटे हुए, उनकी रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने की थी, एंड देन दे हैड दोज इन 3D। नाउ दैट्स फॉर दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव देम इन 3D, इवन अगर हम दोबारा से उनकी मतलब रियलिटी में उनको नहीं देख रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा हेरिटेज आपके पास रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है, वो फिर आपको पास डॉक्यूमेंटेड भी है, तो उसकी ज़ाहिर है ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहीं होनी चाहिए जहाँ वो रियलिटी में मौजूद है। आखिर में हम आपसे थोड़ा सा ज़ाती हवाले से जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू फील व्हेन यू गो ऑन हेरिटेज साइट्स एंड हाउ डू यू फील अमंग द पीपल व्हेन यू वर्क विद देम। सो फीलिंग्स तो मेजरली यही आती हैं कि यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड कि यू नो इतने साल पहले भी यहाँ इंसान थे, वो यहाँ से गुजरे थे, एंड दे मेड एन एफर्ट टू लीव अ ट्रेस कि दे वर हियर। Again, in Chilas wali example, all the inscriptions are from the times when people were passing by, so they were not actually living in that area. They took the route along the river Indus, and कहीं पे वो रुकते थे तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ कार्व कर लेते थे। अगर हम स्वात के टेम्पल की बात करें, टेम्पल के रिमेन्स की, तो इट्स सो बिग, इट्स ह्यूज, इट्स उसकी लोकेशन इतनी इंटरेस्टिंग है, और उसके अराउंड भी इट्स नॉट जस्ट द टेम्पल, उसके इर्द गिर्द भी the excavations are still going on, and there's a huge city on top of which the whole Barikot area is located. So, as an individual, before feeling as an expert, as an individual, I feel very very overwhelmed कि इतने सारे लोग यहाँ से किस तरह से गुजर के गए थे, and then seeing the layers of history. So you have a trace from 1,000 years ago, then you have a trace from 1,400 years ago, then you might have another trace from just 500 years ago. It's really interesting to see the way we are working on these sites right now. Similarly, people were coming in, they were working on, they were building on these areas, they were leaving any kind of traces. And it also instills this sense of, or this understanding of diversity of humans on this planet, कि लोग कितने ज़्यादा diverse हैं और कितनी ज़्यादा तरह से spread out हैं, और अपनी कोई ना कोई जो है remain या अपना कोई ना कोई trace इन places छोड़ के जाते हैं. So for example, this temple in Swat, this I got to know very recently about it, कि ये हिंदू शाही टाइम का टेम्पल है, एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल्स जो हिंदुइज्म में बिल्ड हुए थे. सो बिफोर दैट हिंदुइज्म वाज नॉट so much about the in a physical space, in an inside a temple वाला concept इसमें कम होता था. जब ये वाली चीज start होने लगी, this temple in Swat was one of the first. So you are actually in an archaeological site which is so important for so many people who are not in the context or even the immediate context, but they are spread out throughout the world. And while we were there, Luca Oliveri, who is the director of the whole mission of archaeological mission, he's definitely, like, he knows a lot about the field, and he's been working on this site for the past 30-35 years. He told us about the whole history of what are the in Hinduism के अंदर कितनी ज़्यादा stories हैं which link directly to this temple, and then a mountain in the surrounding. So बहुत सारी stories हैं which do identify that this was a specific mountain, जो इनकी जो आपकी जो भी epics होते हैं उनके अंदर अगर कोई किसी mountain की किसी specific जगह की बात हुई थी, तो this was the exact mountain, and it's right there in Swat. So at some point you feel very overwhelmed and very excited कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितने ज़्यादा लोगों ने अपनी जो है ना ट्रेसेस छोड़े हुए हैं, और कितनी ज़्यादा रिच हिस्ट्री है हमारी एज अ कंट्री इन साउथ एशिया स्पेसिफिकली. एंड देन कुछ हद तक हमारे केस में थोड़ा सा सैड भी फील होता है दैट वी डोंट नो अबाउट इट. वी आर सो अनअवेयर ऑफ द रिच कल्चरल हिस्ट्री दैट वी हैव. हम लोगों की जो हिस्ट्री है वो बहुत रिसेंट से शुरू होती है, हम लोग पुरानी बातों को इतना कंसिडर भी नहीं करते. वेर इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
जो पुराने ज़माने की ज़्यादा बातें होती थीं, जो ज़्यादा पुराने रिमेन्स जैसे कोलोसियम हो गया या पूरा रोमन फोरम हो गया, उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती, एवरीवन नोज़ अबाउट इट। बट इन आवर कॉन्टेक्स्ट, I think we have much of a cultural history or richer cultural history as compared to those countries जो ज़्यादा known हैं. But हम लोग इतना ज़्यादा आपस में भी हमें नहीं पता और फिर इंटरनेशनली भी हमें इतना ज़्यादा नहीं पता। और जो काम कर रहे हैं वो भी आके जब हम साइट पे जाते हैं हमेशा देखते हैं या वो इटालियन मिशन होगा या वो फ्रेंच मिशन होगा या वो कोई कैनेडियन किसी यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट होगा। सो स्टडी भी वो कर रहे हैं, पता भी उनको है एंड वी आर जस्ट वी कम इन वेरी लेट। सो इट ऑल्सो makes you as an expert, it makes me feel sad. As someone who knows about heritage, it makes me feel sad. And as an individual, I definitely feel excited and overwhelmed. एंड देन लोकल लोगों का रिएक्शन ज़ाहिर है उतना ज़्यादा एक्साइटेड या ऐसा नहीं होता जितना एज एन एक्सपर्ट या एज समवन हु नोज अबाउट इट जिसका होगा बिकॉज आई एम फ्रॉम द फील्ड आई अंडरस्टैंड और हैव मोर वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स एज कम्पेयर टू लोकल बट बहुत दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोकल्स इतने अवेयर होते हैं दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग द रिच कल्चरल हिस्ट्री ऑफ दिस कि वो भी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं a lot of people in our context at least are interested in bringing people in to see their area they feel proud कि हमारे पास ये भी है हमने देखें इसको ऐसे मेंटेन करके रखा है इवन इफ उनकी पर्सनल एसोसिएशन ना हो इवन इफ उनके जहन में ये चीज़ ना हो कि दिस रिप्रेजेंट्स immense cultural and historic diversity of my area वो सिर्फ उसको एज एन आइडेंटिफाइंग फीचर या समथिंग टू ब्रिंग इन टूरिज्म कंसिडर करते हैं लेकिन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा फिलहाल इस कल्चरल हिस्ट्री और डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों का रिएक्शन इस हद तक होगा कि व्हाट डू दे सॉर्ट ऑफ गेट इन रिटर्न मोस्टली कि इस को इम्पोर्टेंस दे के या इस पे कोई काम करके हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा उस बेस पे दे माइट हैव अ रिएक्शन बट सम पीपल हु आर अवेयर सम पीपल हु आर इंटरेस्टेड उनके फिर इसी तरह के तासुरात होते हैं दे फील प्राउड दे फील that it's something to showcase to the whole world or to study. Mariam, before ending the discussion, I wanted to ask that what are we leaving behind for our future generation? So we find what's left from our by our ancestors interesting because it's very different from the way we live, from the way our cities are built, from the way we approach a religious building, from the way we have our military systems. हमारे पास अभी fortresses as such नहीं होते उनका system ही ये था हमारा कोई और system है so I think whatever we are doing, we cannot say abhi in this situation that this is what we leave for our future generations. We don't know that. We don't know what our future generations would be interested in. So a few years ago, as I said, in the past century, let's say, when archaeology started as a discipline, yeah, when historic conservation started as a discipline, focus different hota tha. Importance was given to, again, magnificent buildings, magnificent monuments, and they were more focused on bringing the original shape back. जिस तरह अभी हमारी प्रैक्टिस चेंज हो गई है कि हम कहते हैं कंजर्व रेदर देन रिकंस्ट्रक्ट कुछ साल पहले जस्ट अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो 150 इयर्स अगो तक practice ये होती थी कि reconstruct. So they had a different idea of how they wanted their heritage to be seen. So they wanted their heritage to look as it looked when it was built. Right now, the practice that heritage conservationists or heritage managers follow is to acknowledge that अच्छा अभी की हाल situation में this building looks like this and we will leave it as this. कुछ चीज़ों को हम चेंज करेंगे और हम जहाँ पे चेंज करेंगे we will make it obvious कि this is where we intervened in the current situation. So हम लोगों की जिस तरह से हेरिटेज की अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है इन द पास्ट जस्ट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स उसी तरह से हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी हेरिटेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट हो गई करंटली हेरिटेज डिस्कोर्स में ये भी एक डिबेट है कि जो हम बार बार बात करते हैं कि हेरिटेज फॉर द फ्यूचर जनरेशंस इस पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होना चाहिए एज कम्पेयर टू हाउ यू इंटरैक्ट विद द हेरिटेज इन द प्रेजेंट सो मोर एम्फेसिस शुड बी ऑन हाउ यू इंटरैक्ट विद व्हाट यू कंसिडर हेरिटेज इन प्रेजेंट आप एक बिल्डिंग को टाइम में मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट करके ना रखें कि हमने इसको कंजर्वेशन कर ली इसकी प्रिजर्वेशन कर ली नाउ दिस बिल्डिंग कैन नॉट मूव फॉरवर्ड सो द कन्वर्सेशन एंड द डिबेट राइट नाउ ऑल्सो इज के बिल्डिंग्स को स्टिल उनके ऊपर उनको प्रोसेस करने देना चाहिए उनकी एज होनी चाहिए तो ये हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त हेरिटेज की फ्रॉम वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस
whatever issues that we see, कुछ साल बाद 100 साल बाद 200 साल बाद वी कांट से कि आगे की जनरेशन में हेरिटेज की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, तो हम किस चीज़ को हेरिटेज कंसिडर करते हैं। देखा जाए तो आई मीन अनफॉर्चुनेटली द कंक्रीट जंगल्स दैट वी आर बिल्डिंग इन द सिटीज आर हेरिटेज, दे आर गोना रिमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हेरिटेज ऐसी चीज़ हो जो एक पॉजिटिव चीज़ हो, या एक पसंद करने वाली चीज़ हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि बहुत सारे इस तरह के मॉन्यूमेंट्स गिराए गए इन द यूएस। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, दे वर कंसिडर्ड अ गुड पार्ट ऑफ देयर हिस्ट्री, बट इन प्रेजेंट इन 2020 21 22 पीपल स्टार्टेड सेइंग नो टू देम। इसी तरह हम लोग इस वक्त सिटीज़ बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कुछ साल बाद 100 साल 200 साल बाद हमारी जो फ्यूचर जनरेशन का रिएक्शन होगा वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं हमारी कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स को। हम प्रेजेंट में शायद इतना पसंद नहीं करते, लेकिन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, हो सकता है वो इसको कुछ भी ना समझें। अभी भी हमारे पास जो हम कहते हैं कि जिस तरह स्वात में ही जो टेम्पल है उसके अराउंड जो सिटीज़ थे, maybe they were just regular cities for them. Maybe the temple, yes, they must have in mind that this is something that will remain, that will be there as a living evidence of that we were here. But maybe the cities were just regular cities. But is what we are actively working on excavating those cities, bringing them out, and showcasing them कि यहाँ पे ये लोग मौजूद थे। शायद उनके उन cities के अंदर, उन remains के अंदर जब वो construct कर रहे थे, तो इतनी कोई heritage वाली चीज़ उनके ज़हन में नहीं थी। They were just regular cities, regular buildings, regular bazaar का aspect. But अभी हम और द इटालियन मिशन कंसिडर्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास बीच में एक माउंट था, इर्द गिर्द आपकी पूरी की पूरी सिटी जो है प्लेस थी। तो इसी तरह हम अभी हो सकता है किसी चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो और वो आगे हेरिटेज कंसिडर ना हो, और अब हम जिन चीज़ों को मजबूरी में करते हैं या फिर इतना पसंद नहीं करते इवन इन प्रेजेंट, हो सकता है इन द पास्ट इट्स अप्रिशिएटेड मोर फॉर द पीपल। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू के करंट डिस्कोर्स ये भी है कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट लीविंग हेरिटेज फॉर द फ्यूचर एंड स्टॉपिंग एवरीथिंग इन टाइम, एंड rather let the present people, present generations interact with that heritage and decide what they want to do with that heritage. So it can go in any way. So we really don't know what we are leaving for the future. It was lovely talking to you, Mariam, and thank you for joining us on our podcast. Thank you for having me. I really enjoyed this conversation, and I hope it's useful for Idle Talk.